Hi everyone, in this new video I'm going to tell you the 6-month strategy plan for the CAT 2020, which is people who want to start their preparation for the serious level of preparation from the month of June. How can they crack CAT by the end of November? This is going to be an end-to-end video solution for you to make your daily plan, setting up weekly milestones and keeping your monthly goals intact. With respect to all the important subjects of math, logic and English, we'll cover every possible thing, whether you are an engineer, whether you are a non-engineer. It's going to be a common goal which I'll be making for all of you. So, and yes, for people who have already started their preparation, you can also watch this video because this is going to be helpful for you also at the same time. So the only thing which I want from your side, if you have already started a preparation, you have to take a phase 1 level up, which means I have segregated the month-on-month preparation level, whichever stage you are on. अगर आपका बेसिक हो चुका है तो आप एडवांस में क्या करोगे, एडवांस हो चुका है तो आप इंटेंसिव में क्या करेंगे, प्रीवियस पेपर्स कब करोगे, कितने मॉक्स पेपर करोगे, everything I have covered into a very minute level, which is going to help to decide what needs to be done in this upcoming time for the examination. Perfect. Before we start, two important announcements which I'm going to make. In the description box you will see the free night classes का WhatsApp group, जहाँ पे रात में 11 बजे से 12 बजे तक हम लाइव क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स एंड मेंटर्स. अगर आपको इस लिंक का डिस्क्रिप्शन चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं. सेकंड, आई वांट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द गिवन चैनल ऑफ MBAP, क्योंकि यहाँ पे आपको मंडे से लेके अगले संडे तक हर दिन 7 दिन टिल द टाइम यू राइट अ कैट एग्जामिनेशन, हर दिन हम यहाँ पे आपको 8 से 9 बजे तक के बीच में लाइव शाम में आके पढ़ाते हैं. ओके, तो आपको एग्जाम स्पेसिफिक जो भी कंटेंट है, क्या किस लेवल पे सॉल्व करोगे, क्या स्ट्रैटेजी लगाओगे, प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स है उनसे बात करना है, ऑल दीज थिंग्स कैन कम ऑन द प्लेट ऑन द सिंगल प्लेटफॉर्म. सो प्लीज subscribe to the given channel. Before I go ahead, this is a new program that we are launching for the online batch for the year 2020. This is CAT 2020, and for people who want to write CET 2021, this is a comprehensive program that we have launched. Where right from basic that's going to be covered in phase 1, and then so phase 1 में आपका basics of fundamental of math, logic, DI and verbal, ये चारों एलिमेंट्स कवर होने वाले हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% का जो कंटेंट है वो सारे एग्जाम्स का सेम रहेगा. बाय जुलाई मिड यू कैन एक्सपेक्ट योर पोर्शन ऑफ बेसिक टू गेट ओवर. जुलाई से लेके हमारा एडवांस बैच चालू हो जाता है, जुलाई अगस्त से लेके अगस्त तक. जो ओके, तो इस फेज में हम क्या करेंगे, आपके साथ कैट एडवांस कंटेंट पढ़ाएंगे, कैट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होगा, प्लस यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी, आपके नेशनल परसेंटाइल, आपका एनालिसिस और रिकमेंडेशंस आपको 1-on-1 करके दिया जाएगा. द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ MBAP इज द IIM स्पेशल बैच, which is a result oriented batch. There's a return policy from our side. It's an admission guarantee batch. People who get selected in this batch will have to get at least one of the 20 IIM calls. That's a return policy from our side. However, there's some eligibility which you can check with the team of MBAP, what makes you eligible to go for the IIM special batch. Similarly, जुलाई से आपका नरसिंह मुंजी एंड सिम्बायोसिस का कंटेंट भी चालू हो जाता है, ये चलता है अगस्त तक. लास्ट में आपके 2 महीने आते हैं अक्टूबर एंड नवंबर, जहां पे आपके कैट के एडवांस वर्कशॉप चालू हो जाएंगे. पिछले 27 ईयर्स के पास्ट पेपर्स आपको कराए जाएंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैट में हर क्वेश्चन सेम ही आता है पिछले पेपर से, बस उसकी फॉर्मेटिंग और पैटर्न चेंज हो जाते हैं. तो हम हर एक क्वेश्चन को डीकोड करके उसका पोस्टमार्टम करके आपको उसके फॉर्मेट और पैटर्न बताते हैं, ताकि हर एक सरप्राइज एलिमेंट जो 2020 के पेपर में आ सकता है वो सब चीज होल एंड सोल आपके लिए कवर हो जाए. सो राइट फ्रॉम कैट, जैट, IAFT, ये कोई भी आप मेजर एग्जाम ले लो, या अगर आपको नरसिंह मुंजी और सिम्बायोसिस की एग्जाम देनी है, ये पूरा क्वेश्चन राइट फ्रॉम बेसिक टिल इंटेंसिव एवरीथिंग विल गेट कवर्ड. और जनवरी ऑनवर्ड्स हम यहाँ पे MBA CET के बैचेस चलाएंगे. जस्ट लाइक IIM स्पेशल बैच, वी ऑल्सो लॉन्च द रिजल्ट ओरिएंटेड बैच, रिजल्ट ओरिएंटेड बैच फॉर जमनाल बजाज, विच इज अ रिटर्न अश्योरेंस. जो लोग यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उनका सिलेक्शन जमनाल बजाज में पक्का है. पोस्ट विच आपके GDPI, वैट, ग्रुप एक्सरसाइज, केस डिस्कशन के फॉर्मेट्स, जो भी आप बिजनेस स्कूल के कॉल लेके आ जाए वो चलता जाएगा यहाँ पे. लेट्स क्विकली बिगिन. सो भाई साहब, अब अगले महीने में कुछ दिनों में आपका जून चालू हो जाएगा. दिस इज फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम द मंथ ऑफ जून, एंड जिन लोगों ने अभी सीरियस हो रहे हो वो भी ये पूरा वीडियो देखिए, टाइम टेबल बना सकते हैं कि क्या आप वर्बल, मैथ, लॉजिक, रीजनिंग में करोगे, सेक्शनल मॉक कितने दोगे, फुल लेंथ कितने दोगे, ताकि आपका स्कोर 99 परसेंटाइल के ऊपर पहुंचे. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट मंथ विच इज जून. Let's first talk about the elements which you will do in verbal, quant and LRDI. Followed by that, we'll talk about the sectional and the full length paper. So as we know, verbal ability of CAT, there are 34 questions which comes in the paper, and 24 are purely from reading comprehension. जो बाकी 10 क्वेश्चन बच गए, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3-4 चीजें आती हैं: पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी एंड पैरा जम्बल्ड.
4 क्वेश्चन पैरा जंबर्ड के, 3 पैरा समरी का, 3 पैरा कंप्लीशन का। ना ही ग्रामर का क्वेश्चन, ना ही वोकैबुलरी का क्वेश्चन, ना ही इडियम्स और फ्रेजेस का क्वेश्चन। इट्स अ वेरी सॉर्टेड एग्जामिनेशन फॉर यू। सो अभी हम जो जून महीने में फोकस करेंगे वो करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। जिन्होंने अभी तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से चालू करना नहीं किया हुआ है, फॉर द मंथ ऑफ जून आई वांट यू टू फोकस ऑन योर वोकैबुलरी which is going to help you out to understand the terminology which is going to be mentioned in the reading comprehension passages. Second is your reading speed. How do you check your reading speed? By checking on a parameter of WPM, words per minute. तो आपको अपनी रीडिंग स्पीड ऑनलाइन जाके टेस्ट करनी पड़ेगी, कितने वर्ड्स आप 1 मिनट में पढ़ सकते हैं। आइडियली जो लोग कैट निकालते हैं, उन कैट 99% प्लस निकालते हैं, उनका स्पीड होता है 375 वर्ड्स पर मिनट। देखिए आप आज की तारीख में 250 पे हो या 275 पे हो, अगले 6-7 महीने के अंदर हमको इस स्टेज पे आना है कि आपका 375 का स्पीड पे हो। थर्ड स्किल जो आपको इंप्रूव करनी है वो आपकी रिटेंशन स्किल्स। अब आपके जो पैसेजेस होंगे वो उसमें कम से कम अराउंड 600, 700, 800 वर्ड्स होंगे। इट्स अ ह्यूज पैसेज। हो सकता है जिस बैकग्राउंड से आप आए, एजुकेशन बैकग्राउंड से, वहां से पैसेज आए नहीं हो, वो इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, यहाँ कहीं से आ जाए। तो आपको अलग अलग जॉनर्स के ऊपर आपको पढ़ना भी है, प्लस एट द सेम टाइम आपको कौन से स्किल के ऊपर काम करना है? अपने रिटेंशन स्किल्स के ऊपर काम करना है कि जो कुछ मैंने पढ़ा हुआ है वो मैं रिटेंट कैसे करूं, मेरे दिमाग में वो समरी कैसे बन जाए, ताकि जब मैं क्वेश्चंस पे जाऊं तो आई कैन रिलेट कि कौन सा आंसर कहां पे छुपा हुआ होगा। इन 3 चीजों के ऊपर आपको बेसिक काम करना है, क्योंकि मोर देन 60% ऑफ वर्बल सिलेबस इज बेसिकली फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन। इसके अलावा अभी मैं आपको बोलूंगा कि जून के महीने में आप सिर्फ 2 एलिमेंट पे और काम करो। पैरा जंबर्ड ऑप्शंस के साथ करो। कैट में ऑप्शंस नहीं आएंगे पैरा जंबर्ड में अभी के लिए। अगर आप बेस लेवल पे हो तो आप ऑप्शंस के लिए साथ चालू करो, आप पैरा कंप्लीशन का बेसिक चालू करो। इतना ही मुझे चाहिए। ऑन अ डेली बेसिस आई वांट यू टू हैव एटलीस्ट 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अ डे, वो भी ऑनलाइन पोर्टल पे जाके पढ़िए आप। देयर इज वन इंपॉर्टेंट वेबसाइट विच आई रिकमेंड टू एवरीवन, विच इज alldaily.com। alldaily.com पे जाओ, दुनिया भर के अच्छे लीडिंग न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स और ब्लॉग्स आते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे जाके हर एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं जो 1000 से 2000 वर्ड के बीच में होगा। इट्स क्वाइट लेंदी, लेकिन आपको कम से कम रिटेंशन स्किल्स, आपकी वोकैबुलरी और आपका रीडिंग स्पीड, ये तीनों पे आपको काम करने का मौका मिलेगा इफ यू गो ऑन दिस प्लेटफॉर्म alldaily.com। ये बहुत ही फ्री रिसोर्स है, आप जाके कोई भी पैसेज पढ़ सकते हैं। तो यूजली व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं हर दिन अलग अलग पैसेज पढ़ता था। एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन साइंस-फाई विच इज साइंस फिक्शन, किसी दिन टेक्नोलॉजी पढ़ लिया, किसी दिन मेडिसिन का आर्टिकल पढ़ लिया, किसी दिन मैंने फिलोसफी का आर्टिकल पढ़ लिया। तो अलग अलग आर्टिकल्स आपको अलग अलग दिन पढ़ने हैं। उसके ऊपर आपको पूरे महीने में 2 सेक्शनल टेस्ट देने हैं। मैं आपको बताऊंगा सेक्शनल टेस्ट आपको कब देना है, और 2019 का VARC पेपर आप सॉल्व करेंगे। ये रहा आपका जून वर्बल का प्लान। अब आते हैं क्वांट में जो लोगों ने प्रिपरेशन अभी अच्छे लेवल पे चालू नहीं किया हुआ है, आप उन सब के लिए मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप अपना बेस लेवल से चालू करो। ऑन द बेसिक साइड आई वांट यू टू फोकस द फर्स्ट एलिमेंट विच इज अरिथमेटिक। जिनका अरिथमेटिक हो चुका है वो आगे वाले स्लाइड से कंटेंट लेंगे, ये आप स्किप कर सकते हैं। जिनका नहीं हुआ, फोकस ऑन एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, SICI, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। ये 7 टॉपिक्स हैं जहां से आप कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 34 में से। सो जून के महीने में कम से कम आप अपने 8 क्वेश्चंस का लेवल तो पूरा खत्म करो ही। लेकिन एक चीज है कि कहां तक पढ़ेंगे। प्रैक्टिस टेस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1, 2 एंड 3 है। फिर मैं क्या करूं, पहली बात तो आप जो भी बेसिक रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हैं ये आप करेंगे। इसके अलावा व्हाट आई रिकमेंड इज आपको सेक्शनल टेस्ट से पहले टॉपिक लेवल टेस्ट लेना पड़ेगा। हर एक में कम से कम 30 मिनट, 30 क्वेश्चन का एक टॉपिक लेवल टेस्ट देख लो और देखो एक मिनट में आपके इजी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये भी हो रहा है, देन यू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। डोंट सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन तो एक बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं, या तो अगर आपको चाहिए तो आप एक बुक भी मैं रिकमेंड कर सकता हूं जिसका नाम है फेस टू फेस कैट। फेस टू फेस कैट की बुक ले लो, डाउनलोड कर लो, उसका एप्लीकेशन भी है। यहाँ पे टॉपिक लेवल पे हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पिछले सालों में आए हुए हैं वो पूरे क्वेश्चन एक साथ दिए हुए हैं। तो मान लो कि पहले मैंने एवरेजेस पढ़ा, एवरेज के बाद मैंने टॉपिक लेवल टेस्ट दिया, उसके बाद मैंने फेस टू फेस कैट से पूरे पिछले साल के क्वेश्चंस कर लिए। इतना ही करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं। फिर बात आई रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, SICI और बाकी टॉपिक्स जो मैंने आपको दिए हुए हैं। इसके अलावा आई वांट, जैसे मैंने आपको बोला कि सारे टॉपिक लेवल टेस्ट देंगे, 2 सेक्शनल टेस्ट दोगे, और क्वांट के लिए मैं एक चीज बोलूंगा आपको, डोंट सॉल्व बट एक बार देखो 2019 का पेपर कि पेपर क्या था, क्या सेक्शन कितने मार्क्स के लिए आया था, आपके लिए कितने क्वेश्चन हो पा रहे थे या नहीं हो पा रहे थे। नेक्स्ट कम्स लॉजिकल रीजनिंग, LR एंड DI। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो पहली बात तो ये पकड़ो कि आपको 4 पजल आएंगे और 4 DI के केसलेट आएंगे। इट्स अगेन अ वेरी सॉर्टेड पेपर एज फार एज लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन इज कंसर्न्ड। लॉजिकल रीजनिंग में जून महीने के लिए मैं बोलता हूँ
The simple focus have to be on topics like linear arrangement, circular arrangement, input output, syllogism, blood relation. क्योंकि यही कंटेंट है जो आपको कैट में अरेंजमेंट तो आ जाएंगे, लेकिन जब आप स्नैप में, नरसी मुंजी में, IIFT में जाएंगे तो आपको एनालिटिकल रीजनिंग के कंटेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे. सो बीट इनपुट आउटपुट, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन और अरेंजमेंट, ये सब चीजें आपको वहां भी काम में आएंगी. एज फार एज DI इज कंसर्न, बहुत सारे टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं. इन द मंथ ऑफ जून आई वांट यू टू फोकस ऑन टेबल्स इन केसलेट, लाइन ग्राफ एंड बार ग्राफ. कम से कम हर एक के 30 से 40 केसलेट आप सॉल्व करो. पूरे महीना है आपके पास. आप हर एक का टॉपिक लेवल टेस्ट दोगे, 2 सेक्शनल टेस्ट दोगे, और जैसे मैंने आपको बोला 2019 का पेपर देखोगे कम से कम कि क्या आया था, ताकि जो कुछ भी आप पढ़ो आपको समझ में तो आए कि ये सिलेबस सिंक में है कि नहीं जो एग्जाम में आने वाला है. होता यही लोगों के साथ धोखा कि पढ़ते कुछ और एग्जाम में कुछ और आता है. तो भाई साहब पहले ये देखो, वॉट एवर यू आर स्टडिंग शुड बी इन सिंक विद द एग्जामिनेशन. इन द मंथ ऑफ जून आई वॉन्ट यू टू गिव 2 सेक्शनल पेपर, 1 and 2, 1 on 24th of June, 2nd of 30th of June. 2 सेक्शनल मॉक. सेक्शनल मॉक किसके? 2 वर्बल के, 2 मैथ के, 2 लॉजिक एंड DI के. इन ऑल आप बस 6 पेपर देने वाले हो. ठीक है, तो ये 2 दिन आप ब्लॉक कर दो जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल टेस्ट ही दोगे, बाकी कुछ नहीं करोगे. बाकी आपके पास 28 दिन है जहां पे आप कंटेंट पढ़ रहे हो और अपना टॉपिक लेवल टेस्ट भी सॉल्व कर रहे हो. इतना सिंपल आपको प्रिपरेशन करना है जून के महीने में. नेक्स्ट कम्स जुलाई. तो जिनका बेसिक अरिथमेटिक हो चुका है या जो लोग जून में जो कंटेंट मैंने बोला वो पढ़ेंगे, वो अगर जुलाई में आएंगे तो क्या क्या करेंगे. अब यहाँ पे चीजें थोड़ी इंटेंस होगी. अब यहाँ पे मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक लेवल नीचे जाऊंगा. आपको ये पता करना है कि कौन कौन से टाइप ऑफ पैसेजेस आते हैं. राइट, तो ऐसे 8 टाइप के पैसेजेस आते हैं जिनको मैंने कैटेगराइज किया है कौन से महीने में आप कब करोगे. सो इन द मंथ ऑफ जुलाई यू विल फोकस ऑन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस. इन 3 वर्टिकल्स के आप पैसेजेस पढ़ोगे. हर दिन आपको एक ऑनलाइन RC भी सॉल्व करना है जो भी आप टेस्ट प्रिपरेशन मॉड्यूल से पढ़ रहे हो. इसके अलावा मैंने आपको बोला alldaily.com पे जाओ, वहां पे बहुत सारे आपको पैसेजेस भी मिलेंगे जो आपको सॉल्व पढ़ने हैं. पढ़ने के साथ साथ आपको अपना रीडिंग स्पीड WPM, वर्ड्स पर मिनट भी चेक करते रहना है कि जून से जुलाई में आपका कितना हो चुका है. अब इसके भी एक नीचे जाते हैं कि अब तो ये तो हो गया पैसेज. अब बात करते हैं क्वेश्चन टाइप की. इन अ गिवन पैसेज व्हाट ऑल क्वेश्चन टाइप्स विल बी आस्क्ड. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस टाइप व्हिच आर देयर इन RC. In the month of July, I want you to focus on types of title-based question, tone-based question, and theme-based question. That's it. Okay. In the month of July, as you can see, the major focus is going to be on reading comprehension. Apart from this, I want you to solve 5 para completion, 5 para jumbled, and 5 para summary a day. ये आपको रखना है हर दिन का. इसके अलावा आप एक पैसेज और एक ऑनलाइन स्टफ पढ़ेंगे. ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वांट. यहाँ भी मैंने आपको बोला है कि 2 सेक्शनल टेस्ट आप दोगे, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो डेट. यूजली 15th और 30th, 2 हफ्ते पहले और 2 हफ्ते बाद में लोगे तो आपको रिजल्ट आते हुए दिखेगा. नेक्स्ट कम्स क्वांट. क्वांट में हम एक लेवल ऊपर जाएंगे. अब यहाँ पे अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, लॉगरिथम, नंबर सिस्टम, सर्च एंड एनालिसिस. सबसे ज्यादा आपका टाइम जो जाएगा नंबर सिस्टम पे जाएगा. हो सकता है जुलाई में पूरा खत्म भी ना हो, दैट्स ओके. अगर आपने 60% नंबर सिस्टम भी खत्म किया तो भी आई एम हैप्पी. इसके अलावा मुझे आपको चाहिए, जो मैंने आपको हमेशा बोला है पिछले बार भी, कि हर एक टॉपिक लेवल टेस्ट आप सॉल्व करोगे. कैट 2019 और 18 का अलजेब्रा का क्वेश्चन देखोगे. इससे पहले मैंने आपको बोला जून महीने में आप अरिथमेटिक के क्वेश्चन देखोगे, और जुलाई में आप क्या देख रहे हो? अलजेब्रा के क्वेश्चन देख रहे हो. ये टॉपिक्स के जो आप पढ़ रहे हो वो देखो रेलेवेंट है कि नहीं है, और आप कितने क्वेश्चन आप निकाल पाते हो उसमें से. क्लियर. सिमिलरली 15th और 30th को आप 2 सेक्शनल मॉक भी दोगे जो आपको रिजल्ट भी देगा आपको. ओके. नेक्स्ट कम्स लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, एक लेवल ऊपर. अब यहाँ पे आप मैट्रिक्स अरेंजमेंट, क्रिटिकल रीजनिंग, गेम्स एंड टूर्नामेंट एंड कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, ये कंटेंट ज्यादा सिंक है कैट के सिलेबस को लेकर. कैट में जो पजल्स आएंगे वो इसी लेवल के अब आते जाएंगे आपके. ओके. और DI में आप पाई चार्ट, मिसलेनियस और मिसिंग डेटा केसलेट. मिसिंग डेटा केसलेट आपको एक ना एक तो पक्का आएगा कैट में. ये कंटेंट आप टच करोगे. सिमिलरली आप, जैसे मैंने आपको बताया कि टॉपिक लेवल टेस्ट और 2 सेक्शनल टेस्ट आप लोगे 15th को और 30th को, देखने के लिए क्या स्कोर इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. और 2019 का पेपर तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जून में देखने के लिए. जुलाई में आप 2018 का LRDI पेपर सॉल्व करोगे साथ में. क्लियर. अब आपको कम से कम 2 महीने का सिलेबस तो आपने पढ़ लिया है, तो अब मैं चाहता हूं कि अब यहाँ पे आप फुल लेंथ मॉक देना चालू करो. जुलाई से टाइम आइडियली जिन लोगों को IIM में जाना है वो उसको जुलाई में मॉक पेपर देना चालू कर देना चाहिए लेटेस्ट. सो पहला मॉक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको 15 जुलाई को. अगला मॉक आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 31st ऑफ जुलाई को. 15th मॉक जुलाई के मॉक के बाद आपको अपना स्वॉट एनालिसिस निकालना है, स्ट्रेंथ एरिया और वीक एरिया. कि मान लीजिए पहले मॉक में आपको एक X नंबर ऑफ स्कोर आया, मान लीजिए 100 नंबर आए. आपको चाहिए कि अगले 31 तारीख को जब मैं पेपर दूंगा तो मुझे 120 मार्क आए. आई वॉन्ट द इंक्रीमेंट ऑफ 20 मार्क्स. ये 20 मार्क्स 3 सेक्शन में से निकालने हैं. सो कितने काउंट में से निकालोगे, कितने लॉजिक से और कितने वर्बल से,
और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ोगे तब जाके 20 मार्क पढ़ेंगे, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। 2 हफ्ते आपके पास होंगे ताकि ये स्कोर इंप्रूव हो। एक फिक्स नंबर आपके पास होगा तो आप आराम से फोकस भी कर सकते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, हम अपने जो पिछले अगले 6 महीने का गोल है उसको वीकली और मंथली गोल्स में सेग्रीगेट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव किस्म से हमको कितने मार्क्स निकालने हैं, कौन सा टॉपिक करने हैं, सब चीज आपको एंड टू एंड समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट कम्स द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ऑगस्ट विल बी लिटिल बिट मोर इंटेंसिव। ये यहाँ पे आपका पूरा कंटेंट खत्म हो जाना चाहिए 2 अगस्त तक, ठीक है। वर्बल एबिलिटी, जैसे हमने वहां पे 3 सेक्शन देखे, 3 टाइप ऑफ आरसी। यहाँ पे आप फिलोसफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये 3 टाइप के आरसी सॉल्व करेंगे मेजर। ऑल डेली के साथ साथ एक और वेबसाइट है ओपेडिक्शन। ओपेडिक्शन का आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है। ओपेडिक्शन क्या करता है, इंडिया के जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर है, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सबके अच्छे आर्टिकल्स अलग अलग जॉनर से पब्लिश करता है। तो आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, आप उसको रीडिंग स्पीड भी जज करो। अब बात करते हैं क्वेश्चन टाइप में। पिछले महीने में हमने देखा जुलाई में आप कौन से 3 टाइप के क्वेश्चन करोगे। अब अगस्त में आप फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन एंड सेंट्रल आइडिया बेस्ड क्वेश्चन। उसके साथ साथ 5 रीडिंग पैरा कंप्लीशन, 5 पैरा समरी और 5 पैरा जंबर्स पर डे, ये हिसाब आप रखोगे। सेम हियर 15th of August एंड 30th of August, ये 2 दिन आप 2 सेक्शनल टेस्ट भी दोगे वर्बल एबिलिटी का। ओके, इसमें इसके बाद आपका जो पूरा रीडिंग कॉम्पिटिशन है वो एंड टू एंड हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। अब आते हैं ज्योमेट्री। अब बात करेंगे क्वांट या मैथ। इसमें आप एक लेवल ऊपर जाके आप ज्योमेट्री सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्री में क्या क्या, सर्कल्स, ट्राइंगल्स एंड पॉलीगॉन्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और इनइक्वालिटी। सी अलजेब्रा का टॉपिक है, मैंने यहाँ पे इसलिए दिया क्योंकि जुलाई में ज्यादा लोड ना है आपके पास। ओके, जैसे मैंने आपको बोला, आप बेसिक लेवल पे जो भी बुक फॉलो करें वो करो, आप अपने टॉपिक लेवल टेस्ट करो और फिर फेस टू फेस के क्वेश्चन जो है या मोबाइल एप्लीकेशन से या रेफरेंस बुक से सॉल्व करो कि यही टॉपिक है जो मैंने आपको दिए हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बोलता हूँ कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है। तो कैट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो के, कैट विल ऑलवेज डू वन थिंग, दे विल चेंज द फॉर्मेट एंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो आई वांट यू टू बी फेमिलियर विद ऑल द पॉसिबल पैटर्न्स। जब भी आप ये फेस टू फेस बुक सॉल्व करोगे आपका दिमाग खुल जाएगा अपने आप। सो स्टार्ट सॉल्विंग पेपर्स ऑफ 2012 to 2016 इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। क्लियर, ये सिलेबस बन गया आपका क्वांट का इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। नाउ वी हैव लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। आप देखते हैं अगस्त में क्या करेंगे। अगस्त में हम यहाँ पे वेन डायग्राम्स के क्वेश्चन जो मैक्सिमम मिनिमम बेस्ड क्वेश्चन हैं, डेटा अरेंजमेंट और अरेंजमेंट केसलेट्स, जो कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट के केसलेट्स हैं ये आप सॉल्व करेंगे। डीआई में आप मिक्स डीआई, फाइंड द मिसिंग नंबर्स, एक स्पेशल टाइप का डीआई आता है जो कभी कभी आता है कैट में, स्पाइडर वेब डीआई, ये करोगे और केसलेट सॉल्व करोगे। इसके साथ साथ कैट 2012 से 2016 के पेपर्स का पूरा एलआर एंड डीआई आप सॉल्व करोगे ताकि यू आर एंड टू एंड क्लियर विद द कि कैसे कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, ट्रेंड कैसा चेंज हो रहा है, किस लेवल के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। अगस्त इज अ पीक टाइम जहां पे आपको फुल फ्लेजेड मॉक अच्छे से चालू करना है। सो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि आप 3 मॉक दोगे। फर्स्ट मॉक दोगे आप 10th of August को, अगला देंगे 10th of 20 को, अगला देंगे 30 अगस्त को। सेम ऑब्जेक्टिव, हर मॉक के बाद अपना स्वॉट एनालिसिस निकालोगे और 10-10 मार्क का इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे हर 10 दिन में। जितना क्रिस्प प्लान रहेगा उतना रियलिस्टिक आपका स्कोर आते जाएगा। कीप योर प्लान्स वे मच मोर क्रिस्प एज फार एज कैट एग्जाम इज कंसर्न्ड। अब आ गया सितंबर। देखो सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। अक्टूबर में आपका नरसिंह मुंशी का पेपर चालू हो जाएगा। सो जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा है उसमें तो मैं आपको ये बोलूंगा ही कि आप एक नरसिंह मुंशी का मॉक तो दोगे ही, बिना मॉक दिए मत जाओ। पहला मॉक, लोग आइडियली कैट से पहले एक एनमैट का मॉक देते हैं और कैट के बाद एक एनमैट का एक्चुअल पेपर देंगे। तो मुझे चाहिए कि आप एक एनमैट का मॉक एनमैट एग्जाम से पहले देखे जाओ इन द मंथ ऑफ सितंबर ओनली। आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। वर्बल एबिलिटी, दिस इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट फेज। यहाँ पे आपको चीजों को मेंटेन करना है जो कुछ आपने पढ़ा हुआ है। 2 hours a day, 5 पैरा कंप्लीशन, 5 पैरा समरी, 5 पैरा जंबल्ड इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन। फोकस ऑन सेंटेंस करेक्शन, वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। यू कैन आर्ग्यू विथ मी, यार यहाँ इससे पहले वाले महीने में तो हमने इतना एडवांस कंटेंट पढ़ा हुआ है, व्हाट हैपेंड सडनली टू वर्बल एबिलिटी। ये हम फोकस क्यों चेंज कर रहे हैं? फोकस इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि अगले महीने में आपका नरसिंह मुंशी का पेपर आएगा, आप IIFT स्नैप का भी पेपर देंगे। तो ये चीजें, आपका कैट का कंटेंट हो चुका है पढ़ के अगस्त तक, अब बाकी कंटेंट भी देख लो एक बार। क्लियर। एक और चीज, जो लोगों को सिर्फ और सिर्फ कैट पे फोकस करना है, तो एक चीज मैं आपको एक राज बताता हूँ। कैट के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हैं, दोस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑफिशियल गाइड ऑफ GMAT एग्जाम। सो मुझे चाहिए आप कम से कम दिन का एक GMAT का RC सॉल्व करें। यू विल फाइंड योर एफिशिएंसी एंड योर एक्यूरेसी इज गोइंग अप। उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं अब आपके कैट में। प्लस कैट का पूरा वर्बल एबिलिटी आप 2012 से लेकर 2016 तक का पेपर सॉल्व करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर, और जैट का 2015 से 2018 का पेपर सॉल्व करोगे। क्लियर।
अब बात करते हैं मैथ की। मैथ में हमारा एलिमेंट जो बाकी है अभी वो बाकी है मॉडर्न मैथ। मॉडर्न मैथ में सिर्फ 3 चीज, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी एंड सेट थियरी, 3 चीजें करो मेंटेनेंस फेज पे आप। एज सिंपल, बेसिक कंटेंट, टॉपिक लेवल टेस्ट एंड फेस टू फेस के क्वेश्चंस, ये तीनों चीजें आपको करनी है। इसके अलावा ये आपको 2008 से 2012 का क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करना है। हमने 2008 से लेकर 2019 तक का पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ है। आप खुद से भी कर लोगे तो भी आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कैसे फॉर्मेटिंग होती है क्वेश्चंस के। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जो इसी चैनल पे है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर द कैट एग्जामिनेशन। उसमें मैंने बहुत सारे पैटर्न्स डिकोड करके आपको बताए हुए हैं। ओके, लास्ट इज लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अगेन इट्स अ मेंटेनेंस फेज. The focus has to be only and only on advanced puzzle. The focus for DI has to be only on caselets and mixed graph. And 2008 to 12, all the LR and DI caselet you will solve. You can solve from the same book of face-to-face CAT, या अगर आपके पास क्वेश्चंस पेपर पहले से हैं तो वेल एंड गुड। सितंबर वाले फेज में आप 4 मॉक देने वाले हो। पहला दोगे डे 1, महीना जैसे ही चालू होगा तभी आप मॉक दोगे। 7th of September, 14th of September, 21st of September एंड 28th of September। जैसे आप देखोगे पहले मैंने आपको 10 दिन का टाइम दिया हर मॉक के पीछे, अब आपको मैं 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ। जितना क्रिस्प रहोगे, इट्स ओके, मुझे हर मॉक में 2 या 3 मार्क बढ़ाने हैं, दैट्स ओके, आप ऐसा गोल रख सकते हो। लेकिन जितना क्लियर रहेगा आपको आंसर्स मिलते जाएंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, किस सेक्शन से कितने मार्क्स बढ़ाने हैं, और उसके बीच में हर 2 फुल लेंथ के बीच में आपको सेक्शनल टेस्ट देना है कि जो भी आपने 1 हफ्ते के लिए पढ़ा उसका रिजल्ट क्या आते जा रहा है। क्लियर? इस फेज तक आते आते आपका पूरा सैचुरेशन हो जाएगा। इसके बाद ये आ चुका है सितंबर, आते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में भाई आपका एनमैट का पेपर तो आएगा। जो लोग सेकंड विंडो में प्लान कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि वापस से एक और एनमैट का मॉक ले लो अक्टूबर में, ताकि आप प्रिपेयर्ड थरोली फॉर दी एनमैट एग्जामिनेशन ऑल्सो। क्योंकि जो स्ट्रैटेजी कैट में लगती है वो सेम स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी एनमैट में। एनमैट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेट्स से वर्बल एबिलिटी इज वे टू डिफरेंट देन कैट वर्बल एबिलिटी। यू कैन सी आवर प्रीवियस वीडियोस व्हिच विल गिव यू लॉट ऑफ इनसाइट। ओके, तो यहाँ पे मुझे चाहिए आपका 2 RC अ डे, 5 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 5 पैरा कंप्लीशन, 5 पैरा समरी एंड 5 पैरा जनरल डे। हर ऑल्टरनेट डे में आप एक सेक्शनल टेस्ट दोगे एंड स्टार्ट चेकिंग द पेपर्स ऑफ नॉन कैट एग्जाम, IFT, ZAT एंड स्नैप जो आपको देना है। क्योंकि कैट का पोर्शन तो आपको हो चुका है, आप मेंटेनेंस फेज में हो। अब आपके जो भी स्कोर आ रहा है उसको आपको ग्रेजुअली मेंटेन करना है। यहाँ पे आप 100 पे हो, 150 पे हो, मेंटेन करते हुए बाकी एग्जाम को भी देखना है आपको। यस, 2 सेक्शनल पेपर आप दोगे एज सिंपल एज 15th एंड 30th को, मिड ऑफ द मंथ एंड द एंड ऑफ द मंथ। क्वांट में एडवांस कंटेंट, पिछले साल के पूरे पेपर्स निकालो, जो कुछ भी आपने अभी तक मॉक लिए हुए हैं वो पूरे मॉक के हर एक क्वेश्चन, मान लो अगर आपने 10 मॉक दिए हैं अभी तक तो 340 जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे हर एक क्वेश्चन को डिकोड करो, उसकी सोल्यूशन देखो और खुद का अप्रोच बिल्ड अपॉन करो ताकि एग्जाम के लिए आप समझ पाओ। ओके, नाउ सेम हियर, 1 सेक्शनल टेस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे and start checking for IFT, ZAT and SNAP paper for your quantitative aptitude also। 2008 से 12 का पेपर आप देख चुके हो पहले से, जिसने नहीं देखा, जिसका बाकी है वो यहाँ पे अक्टूबर में भी देखेगा। लॉजिकल रीजनिंग एंड DI is again a maintenance phase. Start attending the advanced workshop, revision for all the topics and IFT, ZAT and SNAP papers, और 2008 से 12 का पेपर आपको सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट अक्टूबर भी है मॉक टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि अक्टूबर इज लास्ट मंथ जहाँ पे आप आपको स्कोर ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जो नवंबर आएगा उसमें तो आपको बस देखना है कि आप इंप्लीमेंट करो जो कुछ भी आपने अक्टूबर तक किया हुआ है। तो यस, यहाँ पे मैं आपको 7 दिन देने वाला हूँ हर एक पेपर के बीच में। यू बेसिकली हैव 1st अक्टूबर माइलस्टोन, 7th अक्टूबर, 15th अक्टूबर एंड 21st अक्टूबर। ये फुल लेंथ पेपर है। इसके बीच में आपको 2 सेक्शनल टेस्ट देने हैं ताकि आपको पता चले कि आप पूरे फुल लेंथ में अच्छे जा रहा है, फुल लेंथ में नहीं जाने का रीजन क्या है, कंसिस्टेंसी का इश्यू है, या आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे, या एडवांस कंटेंट नहीं हो पा रहा। ये जब आप अपने सेक्शनल टेस्ट दोगे तो आपको आराम से क्लियर भी हो जाएगा। हर मॉक के बाद अपना स्वॉट एनालिसिस करोगे और वापस से खुद को चैलेंज दोगे, यार एक 7 तारीख के मॉक में मुझे 2 मार्क बढ़ाना है, 15th वाले मॉक में मुझे 5 मार्क बढ़ाना है और 21st वाले मॉक में मुझे 4 मार्क बढ़ाना है। जितना क्लियर रहेगा उतना अच्छा है आपके लिए। इसका आंसर कोई आपके मेंटर नहीं, आप खुद दे सकते हो, क्योंकि प्रिपरेशन तो आपकी है ना दोस्त। लास्ट कम्स नवंबर, भाई साहब 29th नवंबर इज योर कैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी सेट बाय IIM इंदौर। ओके, सो यहाँ पे पहली बात वर्बल, डू नॉट स्टॉप रीडिंग। मैंने देखा हुआ है कि आखिरी महीने में लोग पढ़ते नहीं है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 1 RC अ डे आपको ऑनलाइन पढ़ना ही पढ़ना है। आपको 2 सेक्शनल टेस्ट और 2 फुल लेंथ टेस्ट पूरे महीने में देना है आराम से। बाकी चीजें छोड़ दीजिए आप, सिर्फ आपको पूरे महीने, आपको 29 तक का टाइम है जिसमें आपको 2 सेक्शनल टेस्ट आप ले सकते हो। एक ले लिया 15th को, एक ले लिया 28th को, लास्ट 2 फुल लेंथ टेस्ट मैंने लिया, एक लिया 10th को, एक लिया 24th को। आखिरी वाले वीक में मुझे कुछ नहीं करना है यार। नेक्स्ट वीक पॉइंट, स्टार्ट रिवाइजिंग ऑल द फॉर्मुलाज एंड कॉन्सेप्ट विच एवर यू हैव लर्नड।
मॉक के पूरे क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक 15 मॉक किए हुए हैं तो 3 पूरे क्वेश्चन जितने भी आए हैं क्वांटिटी के सब सॉल्व करो वापस से। फेस टू फेस के पुराने जो भी क्वेश्चन हैं, स्पेशली 2002 से लेके 2019 तक के पूरे क्वांटिटी के क्वेश्चन देख के जाओ। बहुत सारी बार सेम क्वेश्चन अलग तरीके से आपको पूछा जाएगा। सेम 15th को एंड 28th को 2 सेक्शनल टेस्ट ले लो, फुल लेंथ पेपर 10th और 24th को ले लो ताकि चीजें क्लियर हों। 24th के बाद पढ़ाई कुछ नहीं करेंगे हम। लास्ट टेस्ट लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में कीप द कंसिस्टेंसी गोइंग, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। हर दिन का 2 से 3 केस स्टडी आपको सॉल्व करना है, 2 सेक्शनल टेस्ट और 2 फुल लेंथ टेस्ट। दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप एज अ कांस्टेंट पार्ट। जैसे मैंने आपको बोला कि 2 फुल लेंथ टेस्ट देना है, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, लेकिन आइडियली व्हाट आई रिकमेंड, आप 1st को और 15th को इसमें 2 हफ्ते का टाइम दो, क्योंकि ये आखिरी माइलस्टोन है। अब ये समझ लो कि 15th को जो भी आपका स्कोर आएगा वही 29th को स्कोर आएगा। आपने 1st को दिया, मान लीजिए आपका 120 स्कोर आया हुआ है, आप एम कर रहे 150 के लिए। अब भाई साहब 30 मार्क का माइलस्टोन मैंने बनाया और मैंने जड़ दिया, मतलब ये आखिरी पेपर है, यही है जो मेरे को IIM ABC लखनऊ कोझिकोड में पहुंचा सकता है। 30 मार्क का मैंने एक प्लान बनाया कि कैसे आएंगे ये, उसको 15 दिन इंप्लीमेंट किया और 15 तारीख को मैंने देख लिया। 15 को जो आया आप ये समझ लो कि वही आएगा 29 को आया, कि ज्यादा यहाँ वहां नहीं होंगे नंबर्स। तो आपका 29 को पेपर नहीं है, ये पकड़ो कि आप 15 को ही आपका कैट का पेपर है। क्लियर? सो पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ज्वाइनिंग आवर ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर कैट 2020 एंड CD 2021, उनके लिए हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम का जो एडवांटेज है वो आप देख सकते हैं। हफ्ते में 3 बार, थ्राइस इन अ वीक, यू विल बी कमिंग विद योर लाइव सेशंस विद ऑल द IIM मेंटर्स। आप ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को आपके लेट इवनिंग सेशन 9 से 11 होंगे और हर संडे को आपका डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। ये दीज आर लाइव वेबिनार्स। इसके अलावा आपके पास हर एक एग्जाम का लाइव स्ट्रेटेजी वेबिनार्स होंगे ताकि यू आर क्लियर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट नीड्स टू बी डन मोर फॉर द नॉन कैट एग्जामिनेशन। ऑलमोस्ट हर लेक्चर की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। जो लोग क्या करते हैं, लोग इसको प्री रीड समझते हैं कि वो पहले वीडियो देखते हैं देन दे कम फॉर द लाइव सेशन, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। आपको 20 ई बुक्स मिली जाएगी विच इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस टेस्ट एंड डिटेल सोल्यूशन राइट फ्रॉम बेसिक, एडवांस एंड इंटेंसिव। Your advanced material, your basic material, doubt solving sessions, strategy workshop, everything will be given to you. 2 important batches that we launch. One of them is the IIM special batch, which is the admission guarantee batch, and second is the JB IIM special batch, which is a return assurance that will place you only in JB. Okay, these are the features of our online program. People who are interested can take our numbers from the description box and can either WhatsApp us or can call us. If you are not able to get the number, please call me or ping me on WhatsApp on the given number 97696 17665. Okay, we'll give you more details about the program also. Perfect. Talking about 2019 result, यार यही प्रोग्राम हमने पिछले साल भी चलाया था. We got all the possible results of IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, XLRI, Shillong, all the new IIMs, baby IIMs, and the non-IIM colleges also. Clear? So if you want to be one of those, you can ping me on the given number or you can join our online program. Perfect then. Thank you so very much for watching this video. I hope this is going to be helping you out to clear all the possible queries which you have in your mind, and this will help you out to chalk down the entire plan for next 6 months. If you have liked the video, please click on the like button. Please subscribe to the given channel and share with your friends so that all of you can get the benefit.